Hello students, today I am going to explain DNA fingerprinting. As we know that DNA is the double-stranded structure in which nucleotides are there. DNA is a polynucleotide chain. So in the DNA, there are differences in some specific regions. Okay, in the human beings, 99.9% structure of genome is similar, but 0.1% difference is there. So there will be change in the sequence of nucleotide. So this is known as repetitive DNA, and this change is repeating many times in the strand of DNA. So repetitive DNA, they are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. It means the DNA is centrifuge, okay, density gradient centrifugation is there, and in that when the DNA is having centrifugation with the density gradient, so two types of DNA are formed: bulk genomic DNA, that is forming the major peak, and the small peak, that is satellite DNA. Okay, in the two parts the DNA is separated. One is in the bulk form and another is in the satellite DNA form. So in the simple words, we can say that the process of comparison of DNA from different sources to establish the identity is called DNA fingerprinting. By the DNA fingerprinting, it is used in the criminal cases. So comparison of DNA is taking place, comparison of DNA from different sources, so that we can identify the criminal. So this is by the process of DNA fingerprinting. So how this DNA fingerprinting is taking place? Because there is the difference in some specific regions के DNA में कुछ specific regions होते हैं जो repeated होते हैं और वो different होते हैं individual to individual. So some nugget bases are repeated at different length, and this repetitive DNA is different in different individual. So what happens at that time? This repetitive DNA, they are separated from the bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. इस repetitive DNA को जो कि different है, जो कि बार बार repeat हो रहा है किसी भी DNA length में, उसको separate किया जाता है from the bulk genomic DNA. And the bulk DNA forms a major peak. जो bulk DNA है वो एक major peak बनाता है और small peak बनाता है, that is satellite DNA, which is having repetitive units in it, or you can say it is repetitive DNA. Satellite DNA is of two types based on base composition, length of segment and number of repetitive units. मतलब satellite DNA में क्या होता है, कुछ nitrogen bases repeat होते हैं at different interval. तो कुछ जो nitrogen bases repeated होते हैं, तो बेस पेयर्स रिपीट होते हैं जिनका सीक्वेंस सेम होता है, सेम सीक्वेंस वाला जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है. तो वो जो रिपीट हो रहा है तो वो लेंथ क्या, शॉर्ट लेंथ में भी रिपीट हो सकता है और लार्ज लेंथ में भी रिपीट हो सकता है. सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सेगमेंट. शॉर्ट लेंथ में दैट मीन्स हम कह सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी माइक्रो मीन्स थोड़ा सा लार्ज सेगमेंट में रिपीट हो रहा है, मिनी मीन्स और उससे छोटा, जिसे हम कह सकते हैं. तो लेंथ इज डिफरेंट इन द रिपीटेटिव DNA. रिपीटेशन जो होगा सैटेलाइट DNA का वो कुछ कम लेंथ में भी हो सकता है और ज़्यादा लेंथ में भी हो सकता है. रिपीटेटिव DNA का मतलब है कुछ नाइट्रोजन बेसेस सेम, जिनका सेम सीक्वेंस है वो अलग अलग लेंथ में वापस रिपीट हो रहे हैं. सैटेलाइट DNA sequences normally don't code for any protein. Okay, now this satellite DNA जो कि repetitive DNA, ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है, but it is forming the large portion of human genome. Satellite DNA sequence show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprint. इसी repeated DNA को पार्ट को पता लगा के and we use this technique in the fingerprinting. So high degree of polymorphism is taking place in the satellite DNA and it is the basis of DNA fingerprinting. यानी उस segment को पता लगाना है जो repeated होता है वो सब individual में different होता है. An inheritable mutation occurring in a population at high degrees referred to as DNA polymorphism. ठीक है, ये जो high degree of mutation is taking place which is inheritable, that is known as DNA polymorphism.
Repetitive nucleotide sequence in the non-coding DNA of an individual is called variable number of tandem repeats. ठीक है, ये जो repetitive nucleotide sequence repeat हो रहे हैं, same sequence जो repeat हो रहे हैं regular interval में, उसको हम बोलते हैं variable number of tandem repeats. Tandem means sequence of bases. So this is known as VNTR. जो repetitive nucleotide sequence है, that is known as variable number of tandem repeats, that is VNTR. The size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. अब ये repetitive DNA इसका size vary कर सकता है 0.1 to 20 kb, और you can say VNTR का size vary कर सकता है. ये जो VNTR है, जो technique है fingerprinting, that was basically developed by the Alex Jeffries. It is the name of scientist Alex Jeffries. He developed this technique in which he used satellite DNA, also called VNTR, as a probe. ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग को साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज किया था, जिसमें सैटेलाइट डीएनए को एज ए प्रॉब यूज किया. सैटेलाइट डीएनए इज आल्सो नोन एज VNTR. सैटेलाइट यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड जो बेसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम बेसेस वाले हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम सीक्वेंस वाले बार बार रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहे हैं. अब क्या क्या डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे क्राइम हुआ है और वहाँ पर हमें किसी पर्सन का सैंपल मिला है, जैसे ब्लड है या हेयर है या कोई टिश्यू का पीस है, कुछ स्किन है. यदि कोई क्राइम जहाँ पर होता है वहाँ पर यदि पार्ट मिलता है तो उस पार्ट को सबसे पहले उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड it may be blood drops or it may be air or it is a piece of tissue, and from that cell first of all isolation of DNA is taking place. उस सैंपल से DNA को आइसोलेट किया जाता है. डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. उसके बाद डाइजेशन में उस DNA को क्या है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द नेम ऑफ द enzyme, and with the help of this enzyme this DNA जो long strand है it is cutted into pieces. It is cutted into pieces. We can say it is digestion of DNA. जो सैंपल मिला है उसमें से DNA को सेपरेट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट DNA कटिंग ऑफ DNA, जिसे हम कह सकते हैं डाइजेशन. कटिंग ऑफ DNA is taking place by the restriction endonuclease. Okay, now after that सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब ये पीसेस हो जाते हैं डीएनए के, देन आफ्टर दैट दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड. द नेम ऑफ द टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. बाय दिस टेक्निक द pieces of, or you can say fragments of DNA are separated. Now transferring of separated DNA fragments to synthetic membranes such as नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन, एंड आफ्टर दैट ये जो सेगमेंट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है इन द नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन. एक प्रोब है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है. एंड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब. प्रोब क्या है, एक तरह का डीएनए ही है. उस डीएनए में उस फ्रेगमेंट्स को अटैच करके एंड उनको हाइब्रिडाइजेशन, उनकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है. डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय बायोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रॉप के साथ अटैच हैं. तो इस ऑटो रेडियोग्राफी से क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी इजीली विजुअलाइज, वो हमें इजीली दिख जाते हैं. You can see this type of band here, fragments of DNA. These are the fragments of DNA. फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है कि द यूज ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, कहीं इन सॉल्विंग पेरेंटल डिस्प्यूट्स. पेरेंटल डिस्प्यूट है, फादर मदर का पता नहीं, तो बाय दिस कि कोई चाइल्ड यदि क्लेम करता है कि मेरा फादर है या मदर है, तो या फिर कोई पेरेंट्स कोई क्लेम करते हैं, कोई भी पर्सन कहते हैं कि मेरा चाइल्ड है, तो वो उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उनका मैच करा के उनका बैंड्स के अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इन सॉल्विंग पेरेंटल डिस्प्यूट.
नॉन पेरेंट्स, तो इस प्रॉब्लम को क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में और जेनेटिक डाइवर्सिटी में। अब देखिए ये यहाँ पर एक स्केच दिया हुआ है, वन स्केच इज देयर, कि कहीं पे क्राइम हुआ है वहाँ पर ये क्रिमिनल के ये इस तरह के ये बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक एम्पलीफाई करके एक जेल के अंदर, एक अगार जेल है उसके अंदर फ्रेगमेंट्स को, अगार जेल होता है, अगार होता है, उसको यदि मेल्ट करते हैं वो पानी की जैसे कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जैसे। उसमें फिर क्या, एक किसी भी चीज़ से उस वाटर के अंदर कुछ, यदि हम वाटर जैसा जेल जेल एक स्ट्रक्चर, उसमें यदि कुछ कॉम्ब लाइक कुछ इस तरह की चीज़ें इंसर्ट कर दे तो उसमें क्या होल्स बन जाते हैं जहाँ पर क्या है वो जेल नहीं है। उन होल्स के अंदर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाला जाता है, तो वहाँ पर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स इस उन होल्स के अंदर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, बैंड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट उसके अंदर अगार जेल के अंदर दिखता है। तो ये क्रिमिनल का ले लिया, जहाँ पर जो सैंपल है वो सैंपल है। अब मान लीजिए जो भी क्रिमिनल्स है उस पर सस्पेक्टेड है, 2 persons आर सस्पेक्टेड या 3 persons आर सस्पेक्टेड, देन उन पर्सन का भी हेयर या उनका ब्लड सैंपल यूज़ करके उसमें भी इसी तरह से बैंड्स का, मतलब प्रोसेस वही होगा सारा इसी तरह से जैसे बताया। आइसोलेशन करते हैं, फिर DNA is isolated. After that, DNA is converted into pieces by the restriction endonuclease. Then separation of fragments by the use of electrophoresis. And after that, these fragments are transferring in the nylon, okay, synthetic membranes पे ट्रांसफर करते हैं, एंड उसका हाइब्रिडेशन होता है बाय द यूज ऑफ VNTR प्रॉब, किसी और DNA प्रॉब में DNA के साथ अटैच करके स्मॉल VNTR, एक रेडियो एक्टिव ये होता है एक तरह से, प्रॉब इज द रेडियो एक्टिविटी जो शाइन करता है किसी भी फील्ड में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके उसमें वो शाइन कर सकता है। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, दीज ऑल स्टेप्स आर कैरीड ओवर द सस्पेक्टेड पर्सन, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है वो सारे स्टेप्स इसमें रिपीट करेंगे। एंड इस अगार जेल में इस तरह से बैंड्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इस तरह से देखते हैं कि ये वाला जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में ये शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी ये इसमें यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी को सस्पेक्ट 2 के साथ शो कर रहा है। ये वाला क्रिमिनल का है जो एट द स्पॉट हमें मिला है क्राइम सीन पर, और ये सस्पेक्टेड है, सस्पेक्ट पे सस्पेक्ट नंबर 2 वो शोइंग द सिमिलरिटी एग्जैक्ट सेम है। तो वी कैन से दिस सस्पेक्ट 2 है, दैट इज द क्रिमिनल ऑफ दैट क्राइम केस। तो बाय द यूज ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वी कैन नो द अबाउट द क्रिमिनल, जिन पर हमें जो सस्पेक्टेड है उनका हम पता लगा सकते हैं। एंड व्हेन एट द साइट ऑफ क्राइम सैंपल शुड बी रिकवर्ड, सैंपल में बी ऑफ ब्लड ड्रॉप और हेयर, or it may be bone, or it may be any skin piece. So that process, all the process is taking place of the sample, as well as the steps are repeated for the suspected persons also. So in this way we can solve many crimes problem. We can know about the criminal.